Good morning to everyone. Today we will read a new chapter of computer, chapter number 8. The name of the chapter is Data and Memory. In this chapter we will learn how a computer is store data and how he learn or how he memorize everything. Okay. A computer does not work on its own. Okay, computer does not work. I already told you about that computer is work by the help of us. If we give order to computer, then it will start working. You need to work on it by entering letters, numbers or symbols. Okay, you need to work means if you want to work on a computer, you have to enter letters, okay, numbers or symbols. Okay, I already told you about in last chapter there is different kinds of keys on a computer. So with the help of that keys, we should write on a computer, and whatever we have to give them the instruction to the computer, then computer will work. Okay, activity. Let us understand this with a simple activity. Complete the following sentence. Okay, you should understand the activity. My name is, write your name here. My age is, write your age here. My mother name is, write your mother's name. My father name is, write your father name. My house address is, write your house address here. I have dash brothers and dash sisters. How many brothers you have and how many sisters you have, write in these two dashes. Whatever you have written in the letters, words and numbers is called data. Okay, means whatever you write in this, means in word, okay, in numbers, these are called data. Okay, data can be word, number, picture or sound. Okay, a data can be any word, any picture, any numbers or any sound. Okay, memory. Do you understand data? Data is any number, any picture or any sound, we can call it data. हम कोई भी word को, कोई भी numbers को, कोई भी picture को, या फिर कोई भी sound, कोई भी music हुआ या फिर कुछ भी sound को हम data बोलते हैं. Okay, then memory. What is memory? How do you remember things? Okay, how do you remember? तुम कैसे याद करते हो कोई भी चीज़ को? You store everything in your memory. तुम अपने सारे चीज़ को स्टोर कर देते हो अपने मेमोरी पे. ओके, सब कुछ मेमोराइज कर लेते हो, लर्न कर लेते हो. इन द सेम वे ए कंप्यूटर रिमेंबर्स एंड स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी. लाइक दैट ऑल्सो, जैसे ही तुम कोई भी चीज़ को याद करके मेमोराइज कर लेते हो, वैसे ही कंप्यूटर अपने स्टोरिंग डाटा पे मेमोराइज करके उसको स्टोर कर लेता है. ए लॉट ऑफ थिंग, ए लॉट ऑफ डाटा, कोई भी डाटा को वो स्टोर कर सकता है अपने मेमोरी में. इट नेवर फॉरगेट द डाटा stored in it. ओके, मीन्स वो कभी भी कोई भी डाटा को भूलता नहीं है. नेवर फॉरगेट, कभी भूलता नहीं है जो भी हम या फिर जो भी वो कंप्यूटर अपने स्टोरिंग प्लेस में स्टोर करके रखता है, मेमोराइज करके रखता है. कैन यू रिमेंबर एज मच एज कंप्यूटर? लेट अस फाइंड आउट विथ एन एक्टिविटी. मीन्स क्या हम कंप्यूटर के जितना मेमोराइज कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट इन अ सिंपल एक्टिविटी. इट इज़ एन एक्टिविटी. वी विल अंडरस्टैंड क्या हम एज ए कंप्यूटर को, मतलब हम कंप्यूटर में जो भी डाटा फीडअप करेंगे, जो भी डाटा हम उसको देंगे, वो कभी भी नहीं भूलेगा. ओके, वो कभी भी हम जब भी हम वो डाटा को ढूंढेंगे, वो हमें डाटा जैसे हम रखें हमको वैसे ही उसी मतलब सिचुएशन में हमें मिल जाएगा. बट हम अपने मेमोरी में जो भी याद करते हैं, क्या हमें उतना ही याद रहता है एज ए कंप्यूटर? हम यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. Read the number as given in the box below. Now hide the box with your left hand or a piece of paper. Try to recall and write the numbers in the given space. Okay, पहले हमें इस नंबर को रीड करना है. पहले तुम इस नंबर से जितने भी नंबर्स लिखे हैं सारे नंबर्स को रीड करोगे, लर्न करोगे. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ योर हैंड इसको कवर करोगे या फिर एनी हेल्प ऑफ एनी पेपर, प्लेस से पेपर से इसको हाइड करोगे और यहाँ पे इस गिवन खाली स्पेस में लिखने का कोशिश करोगे याद करके. कितना तुम्हें याद है, ओके, कितना तुम ये सारे नंबर्स को कितना याद रख सकते हो, याद करके हमें यहाँ पे फिर लिखना है. हाउ मेनी नंबर्स डिड यू राइट? पहले तुम लिखना, उसके बाद कितने नंबर्स तुम्हें याद रहे, देन काउंट द ऑल द नंबर एंड राइट हियर. ओके, इफ़ यू स्टोर दिस नंबर इन ए कंप्यूटर, इट विल शो यू द सेम नंबर्स वट एवर यू नीड देम. ओके, मीन्स अगर हम ये सारे नंबर्स को स्टोर करके कंप्यूटर में रखेंगे तो हम कभी जब भी हमें कंप्यूटर से कुछ भी चाहिए होगा, हम वही नंबर, हमको उतने ही नंबर, सारे नंबर उतना ही मिलेंगे. वो कुछ भूलता नहीं है. वो जो मेमोराइज करता है एग्जैक्टली हमें उतना ही वही मेमोराइज करके वही चीज़ हमें जब भी हमको चाहिए होगा हमें मिल जाएगा.
Now let us try the same activity with some common words. Okay, these are some words: box, candle, cake, games. These are the words. if हमें इसमें भी वही करना है, हमें हाइड करके पहले लर्न करना है, पहले वर्ड्स को पढ़ना है, उसके बाद हाइड करना है, उसके बाद फिर इस खाली स्पेस में लिखना है. ओके, फिर तुम देखोगे कितना तुम्हें वर्ड याद रहा. बट अगर हम यही सारे वर्ड्स को हम कंप्यूटर में अगर सेव करते हैं और मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, तो हमें जितना सेव किए हैं हमें उतना वही सारे वर्ड्स एग्जैक्टली हमें उतना ही मिल जाते हैं. सो हम इस चैप्टर से क्या समझे? हम इस चैप्टर से ये समझे कि कंप्यूटर का मेमोरी, उसका मेमोरी पावर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, मीन्स हम अगर कुछ भी याद करेंगे तो हो सकता है कि हम भूल जाएं. एग्ज़ाम में तुम लिखते हो, तुम भी होता है कि कभी हमें कुछ चीज़ याद नहीं आती. बट कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी स्टोर करके डाटा रखेंगे, कुछ भी सेव करेंगे, कुछ भी उसके मेमोरी में अगर हम स्टोर करेंगे, तो वो कभी भी वो भूलता नहीं है. एग्जैक्टली हम जो भी उसका मेमोरी में वो याद करके रखा होगा, हमें उतना ही वही चीज़ हमें रिटर्न में मिलेगा ऑन दैट सेम अकाउंट. ओके, from this the chapter is finished.